What's up, Turbo Ravers? Welcome back to the channel of Car Enthusiasts. Welcome back to another video. Before we get started, guys, first of all, I want to say a big thank you. We are so close to 1,000 subscribers, and it definitely means a lot. Your support has been immense, and it is, of course, motivating me to make more content for you. Everything related to automobiles, of course, and let's continue to grow and continue to learn. Let's grow as a community all together. And for the new viewers, if you haven't subscribed already, do hit the subscribe button, press the bell notification so that you don't miss any of my future uploads, and of course hit the like button if you enjoyed the video. All right, in front of us today is a very familiar Kia Seltos. All right, this is the HTX diesel variant. Okay, the 1.5 manual transmission which churns 115 horsepower with 250 Newton meters of torque. So it's punchy, it's powerful, and it's really fun to drive. You must have seen my drive review. You can go ahead and check it out. Now we are going to get a more in-depth idea because this car has been run 20,000 kilometers. All right. And with the launch of the new Kia Seltos, okay, this car has set the benchmark. Okay, given that this car has set the benchmark, okay, we want to understand the owner's experience after 20,000 kilometers. What does he feel? Okay, what has the service been like? What has the drive experience been like? What changes has he made to his vehicle since then? Okay, and what is he planning for the future? Is he planning to keep this car long term, or does he want to sell it off in the next 2-3 years and buy another vehicle? What are his plans? We want to understand each and every aspect, which will give us a better idea as to the ownership experience of this vehicle, and which will give you guys a better idea as well whether you should go for this vehicle long term or not. All right, so without any further ado, let's welcome the owner. And we all are familiar who the owner is. It's of course the celebrity Arka Chaudhary. Okay, thank you so much, Arka, for joining us in this video. Thank you so much for agreeing to this video. So Arka, first of all, before we get started, guys, Arka is also an automobile enthusiast. He also has a YouTube channel. You can check out his videos as well. Everything related to automobiles, test drive, walk around reviews. He posts about his cars as well, what changes he has made, what he plans to do it in the future. Okay, and a lot more informative content is available on his channel, so do check it out and give him a subscription. Okay, he definitely deserves it because his content is amazing. So check out his channel. It will be in the description and of course on the screen in front of you. So Arka, let's get started. First of all, अगर मैं आपसे आगे बढ़ने से पहले एक वन वर्ड में अगर पूछूं, किया सेल्टॉस का एक्सपीरियंस, हाउ हैज इट बीन? So far, आप एक वर्ड से ज्यादा भी यूज कर सकते हो. छोटा ही रखिए क्रिस्प. Okay. दो वर्ड्स में बताऊंगा. No comments. No comments. Okay, no comments in a good way. Oh, no complaints. Acha. Okay. Sorry, my bad. So no complaints. That's a very good thing to hear. First, verdict has मतलब पहले ही आ चुका है कि he is very happy with his vehicle. So Arka, आपने इस गाड़ी को आपने बताया था 20,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट चला लिया है, उससे भी ज्यादा चला लिया है. So एक बार आप ब्रीफ में थोड़ा सा, ऑफ कोर्स जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता ही होगा, बट फॉर द न्यू व्यूअर्स आप एक बार ब्रीफ में थोड़ा बताओ, व्हाट लेड यू टू बाय दिस कार. ऑलराइट, इसके पहले मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूं. Sure. हमारे पास इससे पहले कौन सी कार है? Okay. इसके पहले हमारे पास थी 2019 की बलिनो जेटा. Okay. रेगुलर में थी, पेट्रोल में थी, मैनुअल. ओके, ठीक है. तब तो जोश में हमने ले लिया था कि हाँ, तो उतना हमने सोचा नहीं, रिसर्च नहीं किया, जस्ट देखा कि किस कार को चलाने में मजा आ रहा है. सिटी में पंचे इंजन उसमें सिटी के लिए काफी अच्छा था, माइलेज उसमें सिटी के लिए ठीक ठाक था. ओके, और बहुत रिफाइन था. यही अपनी प्रायोरिटी थी उस टाइम. तो बाकी चीज दिमाग में आ जाती था कि नया कार चलाना सीखना था. करेक्ट. उसके बाद हमारा हाईवे पे काफी रनिंग होता है, क्योंकि मेरे जो रिश्तेदार है वो यहाँ से रहते हैं 250 किलोमीटर दूर. तो हर 2 महीने में एक बार अपना ओके. हाईवे में उस कार पे चलाने के बाद मेरे को बहुत ज्यादा रिग्रेट हुआ. सिर्फ मेरे को नहीं, घर वालों को. ओके. रिग्रेट फर्स्ट तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस, क्योंकि इतनी हल्की वो कार है. आप मान लो चल रहे हो हाईवे पे एक लेन से और दूसरे लेन से कोई आपको ओवरटेक कर रहा है, कोई भी कार सुमो हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो जब दूसरी कार आपको क्रॉस करती है आप लिटरली वाइब्रेट करते हो. कितनी कार में वो शेकीनेस फील होती है. तो हाई स्पीड स्टेबिलिटी, हल्की 800 किलो से जस्ट हुआ है. करेक्ट. क्या स्टेबिलिटी होगी उसकी. और बस को ओवरटेक करने में तो कितना डर लगता है.
Okay. शेक करती थी। हाईवे में वो पंच भी नहीं था क्योंकि पेट्रोल इंजन थी, जस्ट 130 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। करेक्ट। बिल्कुल मजा नहीं आता था, बहुत टायरिंग लगता था कभी, बार बार डाउनशिफ्ट करो, ये वो बहुत 4 घंटे के जर्नी के बाद बहुत हेक्टिक लगता था। तो पावर डिलीवरी वैसा पावर नहीं था। डिलीवरी नहीं था, हाईवे में डर भी लगता था कभी, वेरी ऑनेस्ट, इतनी हल्की फील होती थी। और माइलेज भी हाईवे में उतना खास मिलता नहीं था, लास्ट 70-80 मिलती थी। तब Okay. हमने सोचा कि अब 3 साल हो गए, अपग्रेड करिए इसको जरा, अपर सेगमेंट की कार देखते, थोड़ी सी अच्छी हो, क्रॉसओवर हो, नाम की एसयूवी हो, ओके। क्योंकि एसयूवी तो आजकल सभी बन चुकी है। Correct. वो रही आपकी पंच। एसयूवी बोलते हैं, लेकिन ये सब कुछ एसयूवी है नहीं, सब रेस्ड अप एक्सेसरी है, जैक्ड अप हैचबैक्स। वही है। एक ऐसी कार चाहिए जिसमें कि स्पेस अच्छा हो, फीचर्स अच्छा हो, स्पेशली डीजल हो। इस बार डीजल चाहिए ही चाहिए, ओके। पेट्रोल के साथ इतना दिमाग खराब हो गया था। तो अब आप देख रहे हो डीजल का कैसे डीजल पे बंदिश आ रहे हैं और डीजल कार्स आर बीइंग शट ऑफ बाय द कंपनीज। तो फिर अभी आपको लेकर रिग्रेट होता है कि यार अभी अगर मैं दिल्ली में रहता तब तो मेरे को रिग्रेट होता, क्या कड़ा में आप बच गए। अभी तक तो बचे हैं। अभी तक बचे अभी हुए। तक 15 साल के सकते हैं। करेक्ट। और आपका मैंने एक वीडियो भी देखा था, उसमें एक इश्यू भी हुआ था पोल्यूशन कराते वक्त आपकी गाड़ी का। तो गाइस डू चेक दैट वीडियो आउट, उसका वीडियो मैं यहाँ आई बटन में डाल दूंगा। तो पोल्यूशन इस कार का कहीं पे भी नहीं होता, पता नहीं। Correct. जहाँ पे Correct. मैं जाता हूँ उनका एक ही कहना है, BS6 डीजल का नहीं होता। हमारे मशीन्स BS6 डीजल का पोल्यूशन करने के लिए अब तक अपडेटेड नहीं है। बताओ। आप थिएटर रोड में जाकर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मोटा मोटी सभी गाड़ी का होता है। सो गाइज इफ यू आर फ्रॉम कैलकाटा एंड इफ यू आर फेसिंग इश्यूज विद द पोल्यूशन टेस्टिंग फॉर डीजल कार्स, गो टू थिएटर रोड और शरद बोस रोड, ओवर देयर द पेट्रोल पंप्स आर कंपैटिबल फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड। तो एक बार आप ही चेक कर सकते हो। बट इनका आप वो पोल्यूशन का वीडियो जरूर देखना गाइज, इफ यू आर अ डीजल ओनर एंड सी व्हाट ही वेंट थ्रू, ओके, विच इज रियली अलार्मिंग इन फॉर अ डीजल ओनर। सो एनीवे आगे बढ़ते हैं। आपने इसके अलावा कोई और गाड़ी कंपेयर किया था इसको लेने से पहले? ऑप्शंस कहाँ थे? क्रेटा भी तो था हाँ, ये और क्रेटा, और कौन सी कंपनी डीजल दे? उस टाइम, डीजल में नहीं आ रही थी। हाइब्रिड विटारा तो आई नहीं। करेक्ट डीजल करेक्ट, में है, उसमें डीजल नहीं है, हाइब्रिड है। हाइब्रिड तब नई नई टेक्नोलॉजी तो उतना भरोसा था नहीं। अब डीजल में कोई ऑप्शन है ही नहीं। ये और क्रेटा, और क्या ऑप्शन? अभी भी इसमें डीजल आ रहा है, बट आई थिंक वो भी बहुत नहीं, ये लोग निकाल देंगे तो मेरे को लग रहा है next year, क्योंकि अभी मैनुअल के साथ नहीं आ रहा है। करेक्ट। अब सिर्फ Automatic के साथ। Correct. मैनुअल लवर्स को मजबूर कर दिया कि आप Petrol ही टर्बो पेट्रोल पे ही जाओ। Correct. टर्बो पेट्रोल के साथ भी मैनुअल भी है, ओह नो, उसके साथ हाँ IMT और TCT। डीसीटी है, हमने चलाया था डीसीटी आपके साथ ही। सो मैनुअल वाले के लिए सिर्फ नेचुरल गैस मिलता आजकल तो जो आपकी स्कोडा की ब्रांड है वो भी, उसमें भी मैनुअल जल्दी अवेलेबल नहीं है, पता है आपको? उसमें भी डीएसजी या टॉप कन्वर्टर में ही अब ज्यादा अवेलेबिलिटी हो रही है। करेक्ट। सो आई थिंक मैनुअल इज ऑल्सो इन डेंजर। देखा जाए तो हर एक कंपनी मैनुअल को भी साइड कर रही है, बट एनीवे नथिंग कैन बी डन। आपके किया पे आ जाते हैं। तो अर्का, इस पे आपने कुछ स्टॉक से क्या चेंजेस कराया है, फ्रंट फैशा में या बॉडी में? है। तो बहुत सारे कॉस्मेटिक चेंजेस हैं। सबसे पहले आप देख Please, सकते हैं, बताइए। ये लाल वाली जो स्ट्रिप है, Okay. ये अपनी HTX वेरिएंट है, मैं आपको बता दूं, Okay. डीजल मैनुअल है। Okay. HTX ये सब लाल वाला आता है, ये सब GT लाइन में आता है। Okay. GT लाइन का बम्पर का अलग है, इसमें थोड़ा सा अलग डिजाइन आता है, लेकिन पूरा Okay. बम्पर मेरे को चेंज करवा दिया। ओके, थोड़ा सा GT लाइन वाला फील आ गया। एक फील आ गया, राइट? वाइट को चेंज करवा लिया है, एरोप्लेन वाला। पहले इसमें रेगुलर आते थे, मेरे को बड़ी बेकार लगती थी, अभी एरोप्लेन है। ओके, ऑलराइट। ब्रेक कैलिपर्स है, इनको भी मैंने करवा लिया है रेड। ये 1 साल हो चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा पेंट निकल गया है, वापस से मेरे को करवाना है। लेकिन चार के चारों जो कैलिपर्स हैं, आगे पीछे चारों डिस्प्ले के हाँ, चारों डिस्प्ले डिस्क है, बेस मॉडल से ही वेरी नाइस। चारों मैंने करवा लिए। साइड से भी बिडिंग देख सकते हैं, ये भी। ये टेप जो आपने लगाया है ये अलग से लगाया है? हाँ, ये रेड, ये वाले रेड अलग से। ओके। नॉर्मल ये सिल्वर रहती है स्टॉक होती है, और यहाँ पे और कुछ चेंज नहीं है ना? ये सब कुछ चेंज नहीं है। बाकी ये सब दो वाले जो कॉमन है इसका राइट राइट। सीधे ये स्पॉइलर लगवाना है। ओके। ये इसके ऊपर वाले वेरिएंट HTX प्लस है, उसमें आते हैं। तो ये स्टॉक मतलब ये आपका क्या बोलते हैं, कंपनी से लगवाया है या आफ्टर मार्केट? ये बाहर से लगवाया है, लेकिन ये प्रोडक्ट ये OEM ही है। OEM और ही ये ड्रिल वाली नहीं है, ये चिपकने वाली चीज है। ड्रिल Okay. मेरे को करवाना था नहीं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये GT लाइन की बैग लगवा ली है, हाँ। ये Amazon से ली है 250 रुपए की। ये सही किया। बिल्कुल ओरिजिनल वाली जो लोगो है बिल्कुल वही है। दैट्स नाइस, पीछे वेरी से नाइस। ये रेड है। तो ये देख के तो लोग डर जाते होंगे। हाँ, जैसे आप डर गए थे। और
ये नंबर लाइट वेरी अभी हम बी रोल में डाल देना उसको, बूट में भी ये सब वाइट करवानी है जल्दी आती थी। और ये मैट वैट ये सब तो कॉमन है ही, इसका क्या ही दिखाऊं, झाड़ू वाड़ू। और इसका स्पेयर व्हील आपके इसके नीचे ही है, वो 16 इंचेस का है। करेक्ट। छोटा है, ये सब तो छोटी छोटी चीजें हैं। जो मेन चीज है वो है ये, इसमें आपने डैम्पिंग करवाया ना? डैम्पिंग तो करवाया है एक लेयर अंदर का जस्ट, लेकिन इसमें स्पीकर मैंने बदलवा दिया। स्पीकर भी बदलवाया? ओके। HTX में अपने को मिलते थे आर्कमिस के स्पीकर, 6 स्पीकर का सेटअप था, चारों डोर्स पे 4 स्पीकर्स ओके और सामने 2 स्पीकर्स, ठीक है। ओके तो मैंने इसमें लगवा लिया है बोस। ओके, वेरी नाइस। बोस मैं आपको बता दूं, मैंने सिर्फ पीछे वाले स्पीकर्स को फिलहाल के लिए बोस में अपग्रेड करवाया है। ओके। बाद में आगे वाले को भी करवाया। ये OEM से करवाया आपने? स्पीकर्स तो वही है, लेकिन Okay. लिया बूड में से। अच्छा, तो एक स्पीकर अगर आपने जो रेयर का करवाया, अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात करें तो पर स्पीकर 2500, 2500 पर स्पीकर। ओके मतलब दोनों का 5000 मान के चलो। ओके और ये 5 इंची के हैं, मैं आपको बता दूं, इसमें 6 इंची का भी आता है, Okay. लेकिन उस वक्त अवेलेबल नहीं था। Okay. नेक्स्ट मैं जब अपग्रेड करवाऊंगा, ये 5 इंची वाले को मैं आगे भेज दूंगा, क्योंकि आगे तो ऑलरेडी ट्विटर्स है, तो 5 के साथ ट्विटर का कॉम्बिनेशन में जम जाएगा। टोटल स्पीकर्स ट्विटर्स लेके कितने हैं इसमें? 6 स्पीकर। 6 इंची वाले जो खरीदूंगा उनको पीछे डालूंगा। इसमें सबवूफर नहीं है ना, इसमें नहीं है। इसके ऊपर वाले वेरिएंट जो ST एक्सप्रेस में, उसमें 8 स्पीकर का सिस्टम है, सब ओके। सो गाइस, वी आर इनसाइड द किया सेल्टॉस। इसका एक साउंड टेस्ट कर लेते हैं अच्छा सा। सो अर्का इज प्लेइंग दिस सॉन्ग फॉर अस एंड वी आर गोना टेस्ट द साउंड। और मैंने आपको एक बात भी बता दूं गाइस, switching to English for now. So he's done damping also on all of his doors, which has improved the sound quality. कुछ improvement आया है? नहीं आया, क्योंकि मैंने आपका वीडियो देखा था डैम्पिंग पे, बहुत कंप्लेंट किया आपने। So I will leave that link also over here. You can go and check out why damping is not necessary. All right, and it अगर कुछ effect आता भी है कि नहीं, you can go and check it out. See his full video because he's already done it and he will share the complete experience with you, whether it is worth the upgrade or not. So मैं वो वीडियो आपके ना यहाँ लिंक पे छोड़ दूंगा, तो people can check it out accordingly. और ऐसे एक्सटीरियर की चेंजेस की बात जब करें हम, तो इसका टोटल कॉस्ट कितना आया? टोटल मतलब जस्ट एक्सटीरियर का तो मैंने हिसाब निकाला नहीं है, लेकिन ओवरऑल सब कुछ मिला के इसका 50,000 से ऊपर। 50,000 भैया ने खर्चा किया अपनी गाड़ी में, बाप रे बाप। हर छोटी चीज को लेके मैट से लेके सब कुछ। सब कुछ। मैट में क्या चेंज कराया आपने? 70 मैट्स करवाया। वाओ, दिस इज वेरी नाइस। 70 मैट्स लुक्स वेरी गुड। हर एक कॉस्टिंग आपको जोड़ के बता रहा हूँ, वो 50,000 ऑलमोस्ट 50,000 ऑलमोस्ट 48 ऐसा कुछ है, सब कुछ। ओके, ऑलराइट। और यू आर हैप्पी विद द अपग्रेड्स जो आपने किया है? ऐसा कोई रिग्रेट तो नहीं है कि यार मैंने 50,000 का अपग्रेड करवा लिया? एक ही है ये डोर वाइजर, ये मैं सनवाइजर ये वाला। हां, रेन वाइजर सॉरी जो है ये ओके चीज। ओके, ऑलराइट। इसमें क्यों आपको रिग्रेट हो रहा है? नहीं, रेन वाइजर से मेरे को शिकायत नहीं। अच्छा अच्छा इस पर्टिकुलर वाइजर की शिकायत है, जहाँ से मैंने लगवाया था। अच्छा, ऐसा क्यों? उस दुकान से ही मेरे को लेना पड़ा, क्योंकि कार को जस्ट मैंने तभी परचेज किया था, Okay. तभी सारा लगवा लिया था। एक तो इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, 2000 रुपये चारों के। ओके, क्वालिटी देखो, जो प्रो है ये लगाने के तीसरे दिन बाद निकल गया। तो फिर आपने कुछ बोला नहीं उनको जाके? उन्होंने चेंज नहीं किया? नहीं किया, आज ही वापस पे करना पड़ेगा, आपकी गलती से। ये होता ही है, अगर आप अनऑथराइज जगह से करवाते हो, ये सबके साथ ही होता है। मैं भी इसका शिकार हूँ। और ये वाला भी एक आता है। अच्छा, वो आपने वहाँ नहीं लगाया? अवेलेबल नहीं था। ओके, सो एक तरीके से ठीक ही था। अच्छा, वहाँ से नहीं लगाया आपने। तो जब ये पूरी निकल जाएगी थोड़ी, तब तो फिर इसको दैट मेक्स सेंस, दैट मेक्स सेंस। अब हम लोग देखिए, अब आपने 20,000 किलोमीटर तो चलाया है, आपके 4 सर्विस हो गए, आपने जैसे मेरे को बोला था, राइट? तो अब मुझे थोड़ा सा सर्विस के बारे डिटेल्स बताइए। आपने इसको सेलिका किया से लिया था, सर्विस आपने कोई सेलिका छोड़ के कहीं और से कभी करवाया था? सर्विस एक्सपीरियंस कैसा था ओवरऑल, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, फर्स्ट से लेके फोर्थ तक, ईच एंड एवरीथिंग प्लीज टेल मी। देखो, फर्स्ट जो 2 सर्विस होती है, एक होती है 1 महीना या फिर 1000 किलोमीटर। ओके। दूसरी होती है 6 महीना या फिर 5000। ओके। उन दोनों सर्विस में कुछ काम होता नहीं है, जस्ट चेकअप होती है और वॉशिंग होती है। ओके। छोड़ देते हैं। ओके। उसमें क्या है आपको बताओ, बिल भी 0 रुपीज का बनता है। ओके। इसमें तो कुछ बताने के लिए है। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने कोई एनुअल मेंटेनेंस पैकेज दिया था इसका? कुछ नहीं लिया था। ओके, गो अहेड।
थर्ड सर्विस जिनकी होती है वो होती है 1 साल या फिर 10 साल। ओके उसमें अपना जो इंजन ऑयल फिल्टर इन सब चीज़ों का पेमेंट अपने को करना पड़ता है। Correct. उसमें जस्ट लेबर अपनी फ्री है, लेबर इज फ्री लेबर फ्री, बाकी सब कुछ जो कंज्यूमेबल है उसको अपने को पे करना है। Okay. उसका चार्ज मेरे को पड़ा था 3,300 रुपये ऐसा। वेरी रीजनेबल। और जैसे जब करवाया था सर्विस तो आपको डिफरेंस पता चला था गाड़ी में चलाते वक्त? थोड़ी सी स्मूथ लग रही थी, Smooth बिना चेक करने के बाद। बाकी मुझे कुछ difference था नहीं। सर्विस एक्सपीरियंस सेलिका किया पे मैंने 3 बार करवाया था। Okay. पहले जो फ्री और वो थर्ड वाली, ओके तो बढ़िया मेरे को लगा। ओके हर एक प्रॉब्लम को रेजोल्यूशन दे देते हैं, छोटी चीज़ में बताता, Okay. लोग निकाल लेते हैं कहाँ से इशू आ रही है। Okay. अच्छा लगता है। ओके एक ही उनकी दिक्कत है, बहुत टाइम लेते हैं। टाइम लेते हैं। सुबह मैं 10 बजे कार छोड़ के आया, मेरे को मिली 6:30 बजे शाम को। नहीं, सर्विस सेंटर में ऐसा ही होता है गाइस। यू नो, आप गाड़ी चाहे कोई भी सर्विस सेंटर हो, आप गाड़ी छोड़ के पूरा दिन आपको वहाँ रखना ही पड़ता है। दैट इज वन थिंग। और फोर्थ सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैंने सेलिका से नहीं करवाया था क्योंकि ये जस्ट मैंने 20 दिन पहले करवाया था। पूजा के पहले, जस्ट पहले पूजा के 4 दिन पहले। Okay. उस वक्त सेलिका किया कि बहुत ज्यादा भीड़ थी। Okay. उन्होंने कहा कि अभी स्लॉट हम आपको दे ही नहीं सकते, इतना Okay. ज्यादा भीड़ है। तो Okay. आप पूजा के बाद ले, लेकिन मेरे को ट्रिप पे निकलना था, इसलिए मैं चाहता था कि ट्रिप से पहले सर्विस हो रखी हो तो बेटर होगी कार के लिए। ओके तो मैं दूसरे सर्विस सेंटर पे गया इसलिए, तो वहाँ पे कुछ इश्यूज थे। तो बेसिक सर्विस तो हो गई, लेकिन इश्यूज उन्होंने रिजॉल्व नहीं किया था। करेक्ट तो वापस मैं 10 दिन बाद वहाँ पे गया था तो दिखाने के लिए, करेक्ट। तब तो उन्होंने कर दिया। तो फिर आप सेटिस्फाइड नहीं थे एसपीएल की सर्विस से? पहले वाले से सेटिस्फाइड नहीं था, सेकंड वाले से ठीक satisfied था। So guys, you can check that video out on his channel also. The service experience at SPL Kia, how it was, what he felt, what could have been better. आप इनके चैनल में जाके जरूर देखना। And if you're planning on buying this particular brand का car, you will get a better idea as to how to approach the company and make your choice accordingly. Alright. और अर्का, कुछ आप बताना चाहते हो अपनी एंड से कि किया में क्या बेटर होना चाहिए, क्या मिसिंग है आपकी गाड़ी में? आपको ऐसा क्या लगता है, सबसे बड़ी चीज क्या मिसिंग लगती है आपको अपनी गाड़ी? सेफ्टी। सबसे बड़ी तो यही चीज है। बट चेसिस की है कमजोर, चेसी कमजोर है इसकी। ओके, आपको ऐसा क्यों लगता है वो कमजोर है? क्रैश टेस्ट रेटिंग तो बता दो। वो तो रेटिंग हमने देखी थी, बट एक्चुअली क्या होता है ना, एक ओनर्स एक्सपीरियंस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको इसमें मेनली क्या वीकनेस लगती है? सेफ्टी तो है ही। सेफ्टी को अगर मैं छोड़ दूं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिस दिन एक्सीडेंट होगा, अगर भगवान ना मतलब चाहे, नहीं, ऑफ कोर्स, राइट, तो उस दिन फील होगा अपने को। Correct. लेकिन ये पैसिव चीज है, करेक्ट। एक्टिव चीज है जो मैं डेली फील करता हूँ। उसमें सबसे मेन है इसका सस्पेंशन, मेरे को लगता है बहुत ज्यादा स्टिफ लगता है। बट ऐसा है ना, डीजल गाड़ी का सस्पेंशन स्टिफ होता ही है थोड़ा, लेकिन इसकी ज्यादा ही लगती है, ज्यादा ही स्टिफ लगती है। क्योंकि मैंने क्रेटा भी चलाया, इसके कंपैरिजन में बहुत लाइट है। बहुत लाइट है। ओके। स्टिफनेस का फायदा मिल जाता है हाईवे पे, हम्म। स्टेबल रहती है। इवन 175 तक इस बार मैं टॉप स्पीड खींचा, तो स्टेबल। तो ऐसा कोई शेकीनेस ऐसा कुछ नहीं था? ओके, टॉप स्पीड आपने टाना है, टॉप स्पीड इज 175, मैंने निकाला था 182 तक, 182 तक लेके गया। उसके बाद रोड नहीं मिला। Okay. लेकिन करना नहीं चाहिए। हाँ गाइस, डोंट ट्राई दिस, ठीक है? बिल्कुल खाली रोड था, इसीलिए खाली रोड था। एग्जैक्टली। बंद या स्ट्राइक था, इसीलिए खाली था, इसीलिए अटेम्प्ट किया था। ओके, बट ऐसा करना मत गाइस। ओके, सेफ्टी डिस्क्लेमर मैं दे दूंगा, सो डोंट ट्राई दिस एट होम। ओके, सेफ्टी तो चलो, अब मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने क्रैश टेस्ट होने से पहले ये गाड़ी ली थी या उसकी? तब फिर आपने ये गाड़ी क्यों ली जब आपको पता है इसमें सेफ्टी नहीं है? ऑप्शन नहीं था ना मेरे पास। ऑप्शन नहीं था। डीजल में एक मिक्सर डिस्टेंस है, अगर मेरे को बट हैरियर का ऑप्शन तो था। वो बहुत बड़ी होगी, ओके, वो इससे लाइक ये 4.4 मीटर्स ऑलमोस्ट है। बहुत चौड़ी भी है, इससे हाँ। ऑलमोस्ट यहाँ तक आती है, क्योंकि हम जहाँ पे जाते हैं रिश्तेदार के वहाँ रोड बहुत है, वहाँ पे मतलब 1-1 इंच का सामान पे पार्किंग करना पड़ता है, ऐसे ही। पर मैं हैरियर के बारे में बोल रहा हूँ, उस टाइम तो हैरियर का भी सेफ्टी टेस्ट रेटिंग नहीं हुआ था, तो अच्छा हुआ आपने वो भी नहीं लिया। तो अभी जो नई हैरियर है उसका हुआ है। सो करेक्ट, सो आई कंप्लीटली अग्री, ऑप्शन नहीं था और डीजल लेना था। सेफ्टी में डीजल तो मेरे को सेगमेंट नीचे जाना पड़ता है, नेक्सॉन वगैरह। करेक्ट। फिर वो तो वही बलेनो की लेंथ की हो जाती है, अंडर 4 मीटर्स, तो अपडेट करना पड़ता है। और मैं एक बात बोलूँ ऑनेस्टली, मैंने नेक्सॉन डीजल चलाया है, इतना मजा नहीं आया मुझे चला के, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना मजा ये आया था मुझे चला के। सो इसमें नॉइज की बात नहीं है, बट इसमें एक ड्राइविंग थोड़ा सा फील है, इसमें थोड़ा है, ऑफ कोर्स है। और इसके कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों बता दो। ये तो सेफ्टी हो, हाँ। सस्पेंशन हो, एक चीज है
चलो एक और मैं आपको नेगेटिव बता देता हूँ। Okay. मैंने सेफ्टी इसका बता दिया, सस्पेंशन आपको दिखा दिया बता दिया। ये जो पीछे का सीट है इसका अंडर थाई सपोर्ट एक 6 फीट आदमी के लिए काफी कम है। देखो अगर ये मेरी पोजीशन है तो मेरे को ऐसे बैठना पड़ रहा है, इतना एरिया मेरा खाली है। करेक्ट। अगर मेरे को अंडर थाई सपोर्ट चाहिए तो मेरे को ये जो सीट है इसको ऊपर करना पड़ेगा, रिक्लाइन एंगल अपराइट करके तो बैठना मुश्किल भी हो जाता थोड़ा सा यहाँ पे बेटर होगा, लेकिन लॉन्ग जर्नी के लिए उतना कंफर्टेबल नहीं है। ऑफ कोर्स तो लॉन्ग जर्नी में नहीं बैठ शॉर्ट सकते। लोग पीछे बैठते हैं उनके लिए फायदा है। फॉर्चुनेटली मैं हमेशा इस सीट पे ही बैठता हूँ, कोई प्रॉब्लम मेरे को फेस होती नहीं है। यहाँ पे भी फादर बैठते हैं तो यहाँ पे जनरली मम्मी बैठती है शॉर्ट की में, और बाकी जो बच्चे लेडीज वगैरह वही बैठते हैं। नहीं, हमारा तो एडवांटेज यही होता है कि हम आगे ही बैठते हैं। पीछे सीट क्या है हमें पता ही नहीं। और मैं आपको एक बहुत गंदी चीज दिखा देता हूँ इसके बारे में। ओके। ये इनके इंजीनियर्स ने पता नहीं क्या सोच के ये बनाया है। देखो ये है अपनी जो नॉर्मल प्लास्टिक है ये, Okay. और ये है ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट। ओके। तो इसके साथ ये कभी प्रॉपर फिटिंग बैठ ही नहीं पाएगा। इसका आप नॉइज देखोगे, ओह इसको अगर आप हिलाओगे ची 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 करेगी, लेकिन फॉर्चुनेटली चलते चलते कभी नॉइज नहीं करती गड्ढे वड्ढे पे। लेकिन वो स्लाविया वाला हाल है इसका। दबाओगे उसमें भी ये ग्लॉस ब्लैक हाँ। नई वाली सेल्टॉस में इन्होंने ये ठीक कर दिया है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आपको, ये ना प्रीमियम गाड़ीज में भी फेस किया है, मैंने देखा है कि वो ग्लॉस ब्लैक ना क्रीक होता ही होता है। होता ही होता है, उसका फिटिंग कभी बैठेगा ही नहीं। तो इट इज नथिंग वी कैन डू, कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें। पर ठीक है यार, ऐसे कुछ मुझे तो कुछ वो नहीं लगा, कोई डिसएडवांटेज नहीं लगा। पकड़ के ना हिला तब तक कुछ वो कोई करेगा भी नहीं यार। सो वो कहेगा कि यार ये टूट गई क्या, ये हमको जवाब देना पड़ेगा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे ही है। नहीं, आई कम्प्लीटली थोड़ी अंडरस्टैंड। सी बेइज्जती हो जाती है, लेकिन जो भी है। अब इसके पॉजिटिव्स आप क्या बताओगे? पॉजिटिव्स में बताऊंगा स्पेस। देख लो मेरी ऑलमोस्ट 6 फीट हाइट है, ये मेरी प्रॉपर ड्राइविंग पोजीशन है। सामने तो मैं कंफर्टेबल हूँ, आप देख सकते हैं इतना नीरू सफिशिएंट है ड्राइविंग के लिए। करेक्ट। सीट पूरी की पूरी ऊपर है, Okay. हेडरूम देखो कितना है, प्रीटी गुड। पूरी सीट ऊपर है। सो दैट्स वेरी गुड। और पीछे का मैं आपको स्पेस दिखा देता हूँ। देखो स्पेस काफी सही है इसमें, लेग रूम भी अच्छी है, हेडरूम भी आप देख सकते हो काफी ठीक ठाक है। 3 लोग यहाँ पे इजीली बैठ सकते हैं, क्योंकि 3 हेडरेस्ट है। हम है काफी छोटा सा है, कर्व है बिल्कुल शार्प नहीं, आप देख सकते हो, इसीलिए बैठ सकते हैं। ये है तो आप अभी कंफर्टेबली बैठे हुए हो? हाँ काफी कंफर्टेबली बैठी हूँ, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। बेस्ट मेरे को स्पेशली इस वेरिएंट की लगती है HTX की जो कलर कॉम्बिनेशन है, कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक और बेज, ये सब सॉफ्ट टच लगे, बड़ा प्रीमियम लगता है। क्योंकि GT लाइन में ऑल ब्लैक आता है, Okay. सुपर वाले HTX में तब ऑल ब्लैक आता था, सीट जस्ट ब्राउन कलर की आती थी, और नीचे वाले वेरिएंट्स को सब सॉफ्ट टच आता ही नहीं। Correct. प्रीमियम एयरी फीलिंग इसमें वाला ज़्यादा ये अगर देखा जाए तो व्हाइट और बेज जो कलर्स होते हैं ना, उसमें एरी फील आती ही आती है। वो बात तो सही है। नेक्स्ट सबसे मेन पॉजिटिव तो इसका जो इंजन है, इंजन इसमें माइलेज और परफॉर्मेंस का बैलेंस इतना अच्छी तरीके से किया गया है। मतलब परफॉर्मेंस आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। अब टर्बो पेट्रोल के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते, तो Of course. क्योंकि अलग चीज के लिए बनी ऑफ कोर्स। बट फिर भी डीजल के हिसाब से अच्छी परफॉर्मेंस है, 250 किलोमीटर और माइलेज भी अच्छा खासा निकालती है। गाइस, इफ यू वांट टू सी द पावर ऑफ दिस कार, तो आप हमारा ड्रैग रेस देख सकते हो। मैं यहाँ छोड़ दूंगा, कितने टाइम पहले हमने किया था वो ड्रैग रेस। उसका agree करना है। उसका एग्री करना है, रीमैच करना है, हमारी रैपिड के साथ उधर खड़ी हुई है। सो कैमरामैन चाहिए उसके लिए। बट दिस कार इज एक्चुअली वेरी पावरफुल। आप वो जरूर देखना रेस, एंड यू कैन जज इट फॉर योरसेल्फ। अगर बट टर्बो में चैलेंज की बात करता हूँ कि अगर टर्बो पेट्रोल और ईवी को छोड़ कोई दूसरी नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल या डीजल कार के सामने ले आओ, मतलब 120 तक तो ये किसी कार को जाने देगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें एक्चुअली ना वरना का 1.5 CRT वाला फील एक ही फील है, बस इसमें पावर थोड़ा कम कर दिया, डी ट्यून कर दिया इन्होंने, जो मुझे लगता है। के साथ कम कर दिया। करेक्ट। सो इंजन इज बेसिकली प्रैक्टिकली द सेम, और उसमें कोई बात नहीं है। अब आते हैं आपके वर्डिक्ट में। तो देखिए, डीजल गाड़ी तो अब लेना इम्पॉसिबल हो गया मोस्टली। अगर आप हाँ, और अगर आप कैलकाटा में भी रहते हो तो ये ऑटोमेटिक या IMT में ही आती है, और दोनों में वो फील नहीं आएगा आपको इन टर्म्स ऑफ ड्राइव फील। सो आपका वर्डिक्ट क्या है? आप अगर इस गाड़ी को ऑफकोर्स रिकमेंड तो करोगे ही करोगे, बट सेफ्टी आपकी मेन प्रायोरिटी नहीं है। हाँ, अब रिकमेंड देखो, नई वाली सेल्टॉस को ही करना पड़ेगा, इसको
क्या ही करेंगे लेकिन नहीं, मैं इन टर्म्स ऑफ मैं सेल्टोस ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, मैं इन टर्म्स ऑफ काफी इम्प्रूव किया गया हाँ, है हाँ। सेफ्टी फीचर्स काफी डाल दिए हैं बट उसका बॉडी शेल अभी भी थोड़ा स्ट्रांग नहीं लगता है, बॉडी टू बी वेरी ऑनेस्ट, सेम ही है। जो फीचर्स डाले हैं उससे एक्सीडेंट होने के चांस कम हो जाते हैं करेक्ट 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 तो कहीं ना कहीं अगर हो जाते हैं तो हाल एक ही है करेक्ट लेकिन होने के चांसेस कम हो जाते हैं एडस की वजह से करेक्ट ओके। ये आप देख लो। हाँ अगर डीजल कार लेनी है तो रिकमेंड किसी को करना पड़ेगा और ऑप्शन क्या है इस बकेट को छोड़ के क्योंकि इस सेगमेंट में आप देखो तो डीजल इसी में आता है, एलिवेट में नहीं आता, कुशाक में नहीं आता, टाइगून में नहीं आता है। ये सेगमेंट में यही गाड़ी में आपको डीजल ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको डीजल लेना है तो आपको टाटा में जाना पड़ेगा क्योंकि अभी वही दे रहे हैं और टाटा खैर no comments. So thank you so much Arka for joining us in this video and sharing your experience of the ownership after 20,000 kilometers, after almost 2 years, 1.5 years, 1.5 years में 20,000 kilometers चल चुकी है गाड़ी, अभी भी एकदम नई दिखती है, very well maintained, I have to give you that, and it is of course a great car. जिस टाइम पे ये गाड़ी लॉन्च हुई थी इसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर मनी, दिस इज अ ग्रेट कार, ओके। एंड इवन इफ यू आर गोइंग फॉर अ सेकंड हैंड Kia Seltos, you will not have to worry because reliability के टर्म्स में it is next level, alright. बट अब नई वाली आ चुकी है, अब उसमें I would recommend go for the new one because it is amazing to drive. DCT वाला अगर मेरा रिव्यू देखा आपने, you can check it out over here. It is amazing to drive. Go for the new Kia Seltos. Even Arka is giving you the thumbs up. हाँ बोलो। अगर कोई बंदा सेकंड हैंड में इसको लेने का प्लान बना रहा है, हाँ, ठीक है, हाँ, मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आपको 2022 की लॉट की कार मिलती है हाँ हाँ तो आप All right. 20-21 की मत करो All right. इसमें इसके सस्पेंशन और भी ज्यादा स्टिफ थे। करेक्ट 22 में थोड़ा सा इन्होंने कस्टमर फीडबैक लेकर थोड़ा सा सॉफ्ट किया, ये है तो ये भी स्टिफ लेकिन वो वाला तो और भी ज्यादा स्टिफ। सो ये भी आपने सुन लिया गाइस, लेना है तो 22 का लॉट का ही लेना, और कोई लॉट का मत लेना, ओके। सो दैट्स वन थिंग, 22 के बाद। थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन का। सो गाइस रिमेंबर 22 के बाद का लॉट का ही सेकंड हैंड लेना। खैर अभी तो 22 के बाद का लॉट एक साल में तो कोई बेचेगा नहीं, सो बट यस बेचने वाले ऑफ कोर्स बेच देंगे। बट एनीवे इट इज अ ग्रेट कार, दे हैव टू वर्क ऑन देयर सेफ्टी, ऑफ कोर्स सेफ्टी इज माई प्रायोरिटी। मैं पर्सनली सेफ्टी को बहुत सीरियसली लेता हूँ, आई एम श्योर अर्का भी लेता है और आप भी लेते हो। थैंक यू सो मच अर्का फॉर शेयरिंग द ओनरशिप एक्सपीरियंस once again and letting our viewers know what has your experience been with the Kia Seltos. And guys, if you enjoyed this video, leave a like, subscribe to the channel if you haven't already, and press the bell icon so you don't miss any of my future uploads. We are close to 1,000 subscribers guys, and let's make it happen soon. I'll see you guys in the next one. Till then, take care and stay safe, all of us. Bye bye.